topic has been mentioned under the chapter of the inflation in economic survey 2025-26. तो हमने एक पीपीटी डिजाइन की हुई है so that you will be able to understand it properly, all right? So that you will be able to understand. So what is the meaning of paradox over here, all right? Paradox का क्या मतलब है? तो पैराडॉक्स का बच्चों ये मतलब है कि जब भी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही होती है, कोई भी इकोनॉमी जब ग्रोथ कर रही होती है, तो ग्रोथ का मतलब होगा कि रियल जीडीपी में ग्रोथ हो रही होती है, प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है, राइट? मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चरल या सर्विस सेक्टर सारे ग्रोथ कर रहे होते हैं और उसमें रियल जीडीपी यानी रियल आउटपुट इंक्रीज हो रहा होता है, उसको कहते हैं हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी, हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी। तो जब भी हीटिंग ऑफ द इकोनॉमी होगी, साथ साथ ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन कपल्ड रहता है। बट यहाँ पे इंडिया का ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों डीकपल्ड हैं, यानी कि ग्रोथ तो हो रही है बट इन्फ्लेशन नहीं है, तो इसे बोलेंगे, इसीलिए इसको बोलेंगे पैराडॉक्स सिचुएशन, इट इज ए एनोमली, राइट? दिस इज द एनोमलस बिहेवियर दैट द इंडियन इकोनॉमी इज शोइंग। तो ग्रोथ इज हैपनिंग बट इन्फ्लेशन इज नॉट देयर, ऑलराइट? सो आई हैव रिटन ओवर हियर that the India had achieved robust GDP growth of 8%, okay? 8% का GDP ग्रोथ है कब? फाइनेंशियल ईयर 2026 में। बट इन्फ्लेशन जो है वो लो है, दैट इज 1.7% इन अप्रैल दिसंबर 2025, दैट मीन्स ऑल्सो दैट इज ऑल्सो ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, ओके? दैट इज द फाइनेंशियल ईयर 2026। सो ग्रोथ इज देयर बट इन्फ्लेशन is below the desired level, below the desired level. So growth is not following, inflation is not following the growth. That is called as the paradoxical situation. So I have tried to make you understand over here, all right? So let's just get started here, okay? So what I have written here, that what is the growth inflation trade-off? So I already told you what is the growth inflation trade-off. Trade-off here would mean कि यहाँ पे there is a dilemma, right? There is a non-synchronization between the growth and inflation, okay? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा ट्रेडिशनल ओवरव्यू है, ट्रेडिशनल जो ओवरव्यू होता है हमारा बच्चों, ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कहती है, राइट? ट्रेडिशनल माइक्रो इकोनॉमिक्स कहती है कि हाई ग्रोथ जनरेट्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दैट मीन्स ग्रोथ इज हैपनिंग along with the inflation, राइट? जैसे आउटपुट राइज होता है, वेजेस बढ़ते हैं, कंजम्पशन बढ़ता है और प्राइसेस फॉलो करती हैं, यानी कि इन्फ्लेशन भी होता है। सो यहाँ पे जनरली इसी एजम्पशन में, इसी ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स के एजम्पशन में हमने डेवलप किया है फिलिप्स कर्व, ऑलराइट? फिलिप्स कर्व क्या कहता है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द इन्फ्लेशन। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स, अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, है ना, जैसे ही ग्रोथ होती है अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल गिरता जाता है, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है? तो ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स से ये अभी क्या हो रहा है रियलिटी में क्या हो रहा है कि दिस इज हैपनिंग, यू नो, reality is just opposite to the classical view. Why it is happening? There is a 1.7% CPI inflation, that is far below than the desired level, and India is growing with the 8% of the GDP, all right, in financial year 2026. Okay, so here I have explained it further. Here I have explained it further, bachcho, that Phillips curve, right? So whenever growth is happening, unemployment, there is inverse relation between the growth and unemployment, okay? That means here unemployment is, growth is there, suppose growth is there, just a second, okay? So growth is there, but unemployment is here. So unemployment is very low when the growth is happening. Unemployment is low, that means employment is high, all right? That means, bachcho, just a second. Employment is high, production is high, okay? As a result of which inflation must also be high, okay? So this is the Phillips curve, okay? Phillips curve. Similarly, if you see here the prices, the price level, as soon as the prices, you know, this growth is happening, okay? This is x-axis. As aggregate demand is increasing, as soon as the aggregate demand is increasing, prices goes up and growth happens. So prices and growth, there is a relationship between the prices and growth. So whenever the inflation is there, prices increasing means inflation is there, okay? So when growth is happening, inflation follows. When inflation is happening, normally within the certain limit, growth happens, okay? So this is a traditional curve. Again, I am trying to show you the how traditional microeconomics shows or reflects
in a country. Okay, if you see the business cycle, growth is happening, and this economy is heating. Heating means production is increasing, employment is increasing, demand and prices will also increase. Okay, so this is the traditional microeconomics I just wanted to tell you. But here again, economic survey has shown that the domestic inflation has gone, historic downward trajectory. हिस्टोरिक डाउनवर्ड. अभी ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है बच्चों, आप देखोगे यहाँ पे जो सीपीआई की वैल्यू है, दैट इज 1.71 एंड जो डब्ल्यूपीआई है नियरली 0% है बच्चों, नियरली. और कब ये है? ये 2025 और 26 का डेटा है. आप देखेंगे यहाँ पे नियरली डब्ल्यूपीआई, जिसको हम बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा है नियरली, दिस इज वेरी लो, वेरी लो. सो ग्रोथ इज हैपनिंग, बट द डेटा शोज दिस इज द डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी ऑफ द इन्फ्लेशन. और यहाँ पे देखिए, अगर आप 2023-24 में, यानी लास्ट टू लास्ट ईयर, यहाँ पे एक ट्रेंड हो गया है डिफ्लेशन का. तो देयर आर वेरियस टर्म्स इन द अंडर द टॉपिक ऑफ द इन्फ्लेशन, deflation, disinflation. So when it goes into the negative zone of the inflation, that is called as a deflation, right? Deflation. So inflation, disinflation, and deflation, right? So when it goes into the negative zone of the inflation, that is called as a deflation. Okay, I hope you understand. So CPI and WPI, that has gone beyond a certain limit. Okay, that you need to understand. So that is the data of the economic survey over here. Again, same thing I just mentioned over here. Okay, so again, अभी आप देखो, वो headline inflation की बात हो रही थी. यहाँ पे I have shown you the data regarding the headline inflation. Okay, headline inflation, and here I have shown the data of the core inflation. So core inflation is the headline inflation excluding the food and fuel prices. Okay, तो fuel और food prices को अगर हम subtract कर देते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन से, सो दैट इज कॉल्ड एज द कोर इन्फ्लेशन. ठीक है, कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको. होल्ड ऑन. ओके, सो आप कोर इन्फ्लेशन की वैल्यू देखिए. यहां पे कोर इन्फ्लेशन की वैल्यू है 4.81, और यहां पे इन्होंने एक कोर इन्फ्लेशन की दूसरी वैल्यू दी है, जिसमें हम गोल्ड और सिल्वर की वैल्यूज को हटा देते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि अगर गोल्ड और सिल्वर को हटा दिया जाए, उसके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हटा दिया जाए, तो वैल्यूज 2.36 है. यानी कि देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द कोर इन्फ्लेशन विद गोल्ड एंड सिल्वर एंड कोर इन्फ्लेशन विदाउट गोल्ड एंड सिल्वर. इसका मतलब हुआ कि अगर इसको हम एक्सक्लूड कर दें, तो ये डेटा ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है कोर इन्फ्लेशन की, वो भी बहुत डाउन है. ठीक है जी. सो दैट इज ऑल्सो इन डिसइन्फ्लेशन जोन. ओके, दैट इज ऑल्सो इन disinflation zone. ये है. तो what I have tried to make you understand so far, that what we have discussed that the growth has gone ahead, okay, up to 8%, but inflation, both headline inflation has gone down as well as the core inflation, that has also gone down. Okay, ये डाउन हुआ है. ठीक है जी. तो वही चीजें हैं कि देखिए, कोर एक्सक्लूडिंग प्रीशियस मेटल को अगर हम हटा दें, 2.36 ही इन्फ्लेशन हुआ है. मतलब ये जो है एक डिसइन्फ्लेशन हुआ है, डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड को बता रहा है ये. ठीक है. स्टैंडर्ड कोड 4.81 along with which is measuring the gold and silver values. ओके, तो डिसइन्फ्लेशन मैंने बताया कि फॉल इन जनरल प्राइसेस 2023 से 2026, यानी 3 साल कंटिन्यूअस डिसइन्फ्लेशन के जोन में रहा है इंडिया. ओके, हेडलाइन इन्फ्लेशन में सीपीआई भी डाउन हुआ है और डब्ल्यूपीआई भी डाउन हुआ है. कोर इन्फ्लेशन में स्टैंडर्ड जो कोर इन्फ्लेशन है स्टेबल और स्टिकी रहा है 4.2% के आसपास, अगर वो प्रेशियस मेटल को इंक्लूड करता है तो. बट अगर गोल्ड एंड सिल्वर की वैल्यूज को हटा दिया जाए तो कोर इन्फ्लेशन भी डाउन हुआ है. यानी कि हमारा हेडलाइन इन्फ्लेशन भी डाउन हुआ है और कोर इन्फ्लेशन भी डाउन हुआ है. ठीक है, डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी में जा रहा है. तो इसका मतलब यह हुआ कि ग्रोथ जो है दैट हैज गॉन up to high, but this inflation has gone downwards. Okay, अगर आप देखिए ग्लोबल इन्फ्लेशन कॉन्टेक्स्ट में, देखिए ग्लोबल इन्फ्लेशन कॉन्टेक्स्ट में, तो देखिए इधर जो हमारा है ना, अगर हम पूरा ग्लोबल सिचुएशन को देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए चाइना में इंडिया से ज्यादा जो है डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड है. चाइना का जो ट्रेंड है वो डिसइन्फ्लेशनरी है,
इंडिया का 2.8 है, वर्ल्ड का जो अगर हम एवरेज लेते हैं 4.2 है, यानी कि इंडिया वर्ल्ड के एवरेज से ज्यादा डिसइंफ्लेट किया हुआ है, ये ध्यान रखना है जी। फिर ये वही इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, मैंने ये बताया कि इंडिया में देखिए सबसे ज्यादा जो डिसइंफ्लेशन का जो ट्रेंड है वो सबसे ज्यादा इंडिया में है बच्चों, सबसे ज्यादा इंडिया में है, ध्यान रखिए, ठीक है। और ये देखिए जीडीपी ट्रेड ऑफ्स, तो हम यहां पे देखें चाइना को देखते हैं, ये हमारा जो बच्चों एक्स एक्सिस है वो जीडीपी ग्रोथ रेट को बता रहा है, एक्स एक्सिस इज डिपिक्टिंग द जीडीपी ग्रोथ, ओके, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द इन्फ्लेशन रेट हियर एट वाई एक्सिस। तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज देयर हियर, सो वी हैव गुड जीडीपी ग्रोथ रेट एंड इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो डिसइन्फ्लेशनरी रहा है। रसिया की हालत बहुत खराब है, इसमें ग्रोथ रेट तो जो है बहुत कम है, ग्रोथ रेट यहाँ पे है, और जो इन्फ्लेशन का जो ट्रेंड है वो बहुत हाई है। तो रसिया के कंपैरिजन में इंडिया इज फार बेटर, इन इट इज ऑल्सो फार बेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ चाइना, चाइना से ज्यादा हमारी ग्रोथ हुई है, ओके, और डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड भी जो है चाइना के कंपैरेटिवली हमारा ठीक रहा है, ठीक है जी। अब देखिए तो आरबीआई ने, है ना, आरबीआई ने क्या स्टेप लिया, आरबीआई ने एक स्टेप लिया है 25 बीपीएस का रेपो रेट में इन्होंने कट किया है। इतना एग्रेसिवली आरबीआई ने बहुत ही कम टाइम, बहुत कम ही बार ऐसा जो है रेट कट रेपो रेट में किया है। 125 बीपीएस का यहाँ पे जो है रेपो रेट में कटौती की है आरबीआई ने, ठीक है। क्यों कटौती की है, ये जनरली दिया गया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है गोल्डीलॉक जोन में पहुंच गई थी। गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा जोन है, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो गोल्डीलॉक जोन इज अ जोन व्हिच इज हाईली इनहेबिटेबल, ऑलराइट। सो गोल्डीलॉक जोन इज अ जोन व्हिच इज इनहेबिटेबल, कि वहां पे सारी टेम्परेचर, वहां पे प्रेशर इतना एडिक्वेट रहता है कि ह्यूमन कैन सर्वाइव। तो इंडियन इकोनॉमी के अगर टर्म्स में बात करें तो गोल्डीलॉक जोन एक ऐसा जोन है जहां पे ना तो प्राइसेस बहुत बढ़ी होती हैं, ना तो प्राइसेस बहुत घटी होती हैं, ऑलराइट, और इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, उसे बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन, ओके। इट वाज इन द न्यूज फ्रीक्वेंटली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, so very much important. So Indian economy was in the Goldilocks zone, that is why RBI took the step to cut the repo rate by 125 bps, okay। तो यहाँ पे पहले 6.5 था, कट किया 5.25% आ गया, ठीक है जी। तो क्यों किया ऐसा, अगर ये गोल्डीलॉक जोन में था इंडियन इकोनॉमी, इट वाज वेरी मच प्रोटेक्टेड, तो क्यों किया, क्यों जरूरत थी आरबीआई को ये स्टेप लेने की, रेपो रेट में कटौती करने की क्या जरूरत थी। रेपो रेट में कटौती करने का मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट जो है लोन पे कम हो जाता है और इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बढ़ता जाता है, ठीक है जी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ग्रोथ भी और एनकरेज होगी। तो क्यों किया है इन्होंने, क्यों कटौती की रेपो रेट में, तो ये बोला गया है कि चूंकि गोल्डीलॉक जोन में था बट डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड जो है रिसेशन में ना कन्वर्ट हो जाए, इसी वजह से आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती किया, ठीक है। तो व्हाई आरबीआई टुक दिस स्टेप, सो दैट इकोनॉमी डज नॉट कूल डाउन फर्दर लीडिंग टू रिसेशन। कूल डाउन का मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन कम ना हो जाए, है ना, डिमांड जो है कम ना हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगा तो इकोनॉमी विल कूल डाउन, ठीक है जी। अब हमने अभी तक सो फार वी हैव डिस्कस्ड दैट वी हैड द ग्रोथ इन्फ्लेशन पैराडॉक्स, राइट। तो ग्रोथ ज्यादा हुई है बट इन्फ्लेशन जो है वो कम रहा है, तो उसके रीजंस क्या हैं ये इंपॉर्टेंट है जानना, ठीक है। रीजंस आर इंपॉर्टेंट टू बी नोन, व्हाई, बिकॉज इफ देयर इज अ पैराडॉक्स देयर शुड बी सम रीजन, राइट, देयर शुड बी सम रीजन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि रीजन बिहाइंड द पैराडॉक्स क्या हुआ। सो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है जानना कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बताया कि जो वेजिटेबल की प्राइसेस थी बच्चों, वेजिटेबल की प्राइसेस, पल्सेस की जो प्राइसेस थी, स्पाइसेस की जो प्रॉब्लम थी, ये जो है डिफ्लेशन में पहुंच गई, है ना। तो हमने यहाँ पे ये शो किया है आपको बच्चों, यहाँ पे शो किया है कि देखो वेजिटेबल की प्राइसेस, पल्सेस की प्राइसेस और स्पाइसेस की प्राइसेस, दे हैव गॉन टू द डिफ्लेशनरी लेवल। तो डिसइन्फ्लेशन नहीं बल्कि डिफ्लेशनरी ट्रेंड में वेजिटेबल की प्राइसेस जो है रीच की हैं दिसंबर 2025, यानी कि ये ट्रेंड स्टार्ट होता है यहाँ से अप्रैल 24 से लेके दिसंबर 20, लगभग 1.5 साल का पोजीशन बच्चों। तो लगभग 1.5 साल तक वेजिटेबल और पल्सेज और स्पाइसेस की प्राइसेस डिफ्लेशनरी ट्रेंड में पहुंच गई ये,
और क्यों ऐसा हुआ, क्यों इनके प्राइसेस गिरे? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में लिखता है कि देयर इज रिकॉर्ड सीरियल आउटपुट, देयर वाज एक्सपेंडेड रबी सोइंग एंड फेवरेबल मानसून। ठीक है जी, तो ये सारे फैक्टर्स आ गए, इसी वजह से प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया और इनके प्राइसेस गिर गए, क्योंकि जब भी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से, ऑटोमेटिकली प्राइसेस गिर जाती हैं। ठीक है जी, एक रीजन तो ये था कि फूड प्राइसेस कोलैप्स कर रही हैं। सेकेंड रीजन है पॉलिसी इंटरवेंशन से। पॉलिसी इंटरवेंशन में क्या था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओनियन का बफर स्टॉक पहले से ही कलेक्ट कर रखा कि हमारी इकोनॉमी में क्राइसिस ना हो ओनियन को लेके। एडिबल ऑयल की कस्टम ड्यूटी जो है 20% से 10% इन्होंने कर लिया। ठीक है जी, जिससे कि प्राइसेस जो है ना बढ़े। पल्सेस की जो इंपोर्ट ड्यूटी थी 30% ऑन LOP इम्पोज इन अक्टूबर 2025 टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, यानी डोमेस्टिक फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पल्सेस यानी दालों की जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उन्होंने बढ़ा दिया, सो दैट कि हमारा इंपोर्ट जो है बाहर की कंट्री से ना हो और हमारे जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दिया, बढ़ा दिया। GST रेट रेशनलाइजेशन किया, ठीक है, जिससे कॉस्ट साइड प्रेशर यानी कि डोमेस्टिक यानी प्रोडक्शन जो है बढ़े, है ना, तो GST रेट का रेशनलाइजेशन कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो ये हुआ। फूड प्राइसेस और पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी बोथ टुगेदर स्लैश डाउन द प्राइसेस, स्लैश डाउन द इन्फ्लेशन। ओके, स्लैश डाउन द इन्फ्लेशन। ठीक है जी, अब देखिए, तो हमने वही जो हमने पीपीटी में बताया, हमने फिर से लिखा है। देखिए, एग्रीगेट सप्लाई जब बढ़ जाएगी एग्रीगेट डिमांड से तो डिसइन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेबल की सप्लाई बढ़ी, बम्पर प्रोडक्शन हुआ, सीरियल प्रोडक्शन हुआ, पल्सेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन लिया इन्होंने, है ना, इन्होंने प्रोक्योरमेंट किया, स्पाइसेस का बम्पर प्रोडक्शन होता है। पॉलिसी इंटरवेंशन में एडिबल ऑयल, पल्सेस, GST, बफर स्टॉक, सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक है जी, अब देखिए, ओके, तो हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे, यानी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है, दैट इक्विलिब्रियम हैज टू बी मेंटेन्ड। तो ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा क्या पॉलिसी इंटरवेंशन होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने कुछ, है ना, सजेस्ट किया है, यहाँ पे, है ना, सजेस्ट किया है। उन्होंने कहा कि आप जो है फार्म टू फोर्क पॉलिसीज को एक्सपैंड करिए। फार्म टू फोर्क पॉलिसीज मतलब, फार्म का मतलब यहाँ हो गया बच्चों, है ना, फार्म का मतलब हो गया आपके फार्मर से, यानी कि फार्मर जो इनपुट दे रहा है, फार्मर्स प्रोवाइड द इनपुट, ओके, सो एंड फोर्क मीन्स कंज्यूमर। तो यानी फार्मर से कंज्यूमर के बीच में देयर आर सेवरल इंटरमीडिएरीज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द इन्फ्लेशन। ओके, तो यहाँ पे हमें ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, फार्म टू फोर्क पॉलिसी, जिसमें इंटरमीडिएरीज ना हो, जिसमें सप्लाई चेन मेंटेन हो सके, जिससे कि इन्फ्लेशन जो है ना तो वो इन्फ्लेशन हो ना तो हाइपर इन्फ्लेशन हो, एक मीडियम लेवल पे जो इन्फ्लेशन हो वो बना रहे। ठीक है, फिर उन्होंने बताया सेकंड पॉइंट कि मॉनिटर ग्लोबल रिस्क विजिलेंटली। तो इन्होंने बताया कि जो प्रेशस मेटल है उनकी डिमांड को कैसे हम कंट्रोल करें। अभी हमने वी हैव हर्ड फ्रॉम आवर प्राइम मिनिस्टर दैट हाउ टू restrict the purchasing of the gold and silver. ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि ग्लोबल रिस्क में जो भी ग्लोबल रिस्क हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड ऑफ कॉस्टली मेटल्स, उसको हमें जो है वी हैव टू आल्सो लुक इट एट। ओके, थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब ये हुआ, अगर हम एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो हम जितने प्राइसेस, यू नो, फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं, तो हम कितनी जो क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की और जो इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसे हम बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो अगर इंपोर्ट की प्राइसेस ज़्यादा हैं, फॉर एग्जांपल हम 1 किलो अनाज या 1 किलो सीरियल इंपोर्ट करते हैं, और अगर हम उसी सीरियल को एक्सपोर्ट करें तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसे बोलेंगे हम टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगर इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम बोलेंगे कि इंपोर्ट हमारा ज़्यादा महंगा है rather देन एक्सपोर्ट, जो कि जनरली होता है। ठीक है जी, तो इसे बोलेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड। लेकिन इंडियन इकोनॉमी के विद इन इंडियन इकोनॉमी की बात करें हम टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो यहाँ पे हमने 2 सेक्टर देखे हैं, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर। ठीक है जी, तो अगर हम टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर की जो प्राइसेस है कंपैरिजन टू द मैन्युफैक्चरिंग, ओके, यानी कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो ज्यादा महंगे हैं मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट से। ये पिछले 20 साल का डेटा है, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे सजेस्ट किया है इकोनॉमिक सर्वे में कि जो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का ज्यादा जो है ना
वो ज़्यादा उनकी प्राइसेस होनी चाहिए, है ना, कंपेरिजन टू द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो रहा है पिछले 20 सालों में। ठीक है, तो उसे ये इन्होंने कहा है कि आप इसको रिवर्स करिए, है ना, कुछ ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशन करिए जिससे कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है हमारा रिवर्स हो। तो यहाँ पे लिखा है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफ्लेटर रेशियो टू एग्रीकल्चर फेल फ्रॉम 1.29 टू 0.65। ठीक है जी, तो मैन्युफैक्चरिंग का की जो वैल्यू है, डिफ्लेटर रेशियो का मतलब ये हुआ कि डिफ्लेटर हमेशा, जीडीपी डिफ्लेटर हमेशा ओवरऑल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो डिफ्लेटर है वो कम है इन कंपैरिजन टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो इसको जो है सर्वे ने कहा कि इसको आप रिवर्स करिए। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि मेंटेन मॉनेटरी पॉलिसी क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो जैसे 125 बीपीएस का कट किया, है ना, रेपो रेट में कट किया, तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी को भी विजिलेंटली या जो है इंटेलिजेंटली उसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है जी, तो अगर हम देखें जरा इधर देखें, हम टर्म्स ऑफ ट्रेड को अगर हम देखेंगे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड को मैंने बताया आपको कि कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के प्राइसेस में क्या डिफरेंस है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, इससे हम कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड। और जीडीपी डिफ्लेटर हमारा ओवरऑल प्राइसेस जो है नापता है, क्योंकि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई एक पर्टिकुलर बास्केट की कमोडिटीज की वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं या उसमें इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को बताते हैं। बट जीडीपी डिफ्लेटर ओवरऑल प्रोडक्ट यानी इकोनॉमी में लगभग सारे प्रोडक्ट का की माप करता है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से ज्यादा महंगे हैं, उनका जीडीपी डिफ्लेटर हाई है। ठीक है, ये पिछले 20 सालों का ट्रेंड है। सर्वे ने दिखाया है कि 20 सालों में क्या हुआ है कि एग्रीकल्चर की जो है प्राइसेज ये कंटिन्यूअसली दे आर इंक्रीजिंग in comparison to manufacturing product which are coming down. Okay, coming down, manufacturing products coming down. ठीक है, तो मैंने वही चीज लिखा है यहाँ पे, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर मोर कॉस्टली देन द मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ेगी, इसका मतलब यह हुआ कि रिसोर्सेज जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू एग्रीकल्चर। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग टू एग्रीकल्चर। इसका मतलब यह हुआ कि और वो रिसोर्सेज क्या है, जैसे लैंड, लेबर। ओके, लेबर आर कमिंग बैक फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ओके, तो मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की प्राइसेस ज्यादा हो रही हैं, इसका मतलब यह हुआ कि रिसोर्सेज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर सेक्टर मोर देन द मैन्युफैक्चरिंग वन। अगर ऐसा रहा तो इन्वेस्टमेंट बच्चों जो है डिटर होगा ड्यू टू हाई इनपुट कास्ट, यानी कि लैंड और लेबर जो है वो महंगे हो जाएंगे। ओके, और उनकी इनपुट कास्ट बढ़ेगी और उससे इन्वेस्टमेंट हमारा डिक्रीज हो। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे ने क्या कहा कि देयर इज अ नीड ऑफ फार्म टू फोर्क पॉलिसी टू कंट्रोल ओवरऑल इन्फ्लेशन। फार्म टू फोर्क मतलब फार्मर्स इनपुट प्रोवाइड करता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है, फिर कंज्यूमर की तरफ जाता है, तो इसमें मिडिल मैन बहुत आते हैं। तो एक ऐसी पॉलिसी डिजाइन करिए जिससे कि ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है हमारा कम हो, क्योंकि इंटरमीडिएट आने के बाद इन्फ्लेशन जो है हमारा वो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ जाती हैं। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन है, इंडियाज अचीवमेंट ऑफ हाई जीडीपी ग्रोथ alongside low inflation in 2025-26 challenges conventional Phillips curve framework. Critically examine the structural and policy factors that enable this growth inflation paradox. तो ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग के पास 10 मिनट्स है, आप लोग लिखिए, है ना, फिर मैं इसको देखता हूँ। थैंक यू।